میرے لیے ایک بار زوردار تالی بجائیں آپ ندیم بھائی کو پلیز سن لیں پلیز. دیکھیے ایسا ہے، بادشاہوں سے بھی پھینکے ہوئے سکے نہ لیے، ہم نے خیرات بھی مانگی ہے تو خودداری سے. آپ کو میں بتا دوں کہ میرا رزق حلال تو وہیں سے ہو گیا، اور شاعری سنانے کا مجھے شوق نہیں ہے. مجھے معلوم ہے اچھے سے کہ میں شاعر جیسا بھی ہوں ٹوٹا پھوٹا، لیکن اصلی شاعر ہوں، اس لیے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. آپ نہیں سننا چاہتے ہیں تو مجھے سنانے کا کوئی ضد بھی نہیں ہے نہ کوئی شوق ہے. میں سیدھے عمران پرتاپ گلی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کی خدمت میں اپنا گیت سنائیں. جی آپ نہانا تیرا پانی میں یا جو بھی چاہیں گے، مدرسہ چاہیں گے، میں سب پڑھوں گا. آپ اب تھوڑی دیر دیکھیے 25 منٹ کے آس پاس بچا ہے وقت. میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں. ہاں مدرسہ بھی انشاءاللہ وہ بھی سنا دوں گا. ایک مہم شروع کی تھی اور کورٹ نے اس پہ روک لگا دی تھی. آج آپ کے بیچ جاں باز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا کوئی. جاں باز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا. سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا. اگلا مصرع مجھے سن کے بتائیے گا، میرے دکھ میں شامل ہو کے بتائیے گا. میں پرتاپ گڑھ سے آیا ہوں. سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا کوئی خالد نہیں مرتا، ضیاء الحق نہیں مرتا، کوئی خالد نہیں مرتا، ضیاء الحق نہیں مرتا. یہ جو میری نوجوان پیڑھی سامنے بیٹھی ہے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں. 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس گیت تک آؤں گا، اس نظم تک آؤں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں وسیم بھائی لوک سبھا میں ایک سانسد صاحب راشٹر گیت کے وقت اٹھ کر کے واک آؤٹ کر گئے تو پورے دیش کے مسلمانوں پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ ہم وندے ماترم کا اپمان کرتے ہیں، ہم راشٹر کی پوجا کا جو گیت ہے اس میں شامل نہیں ہوتے. میں 4 مصرے بڑی محبتوں سے پڑھتا ہوں اور شاید آپ کے من کی بات کہہ سکا ہوں تو جو پڑھے لکھے تمام میرے دوست ہیں، نوجوان دوست ہیں، ان سب کی شرکت ہو، ان سب کی دعا ملے. بہت ہمت سے پڑھتا ہوں، آپ سے دعا مانگتا ہوں. پڑھتا ہوں، سنے گا کہ خدا کی راہ میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. یہ وہ سچ ہے. پورے دیش کی میڈیا نے کرٹیسائز کیا کہ ایسا کیا ویسا کیا، لیکن میں ہمت کرتا ہوں مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے. جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے. میں پڑھتا ہوں، خدا کی راہ میں ہم
कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, अब आपका शोर पूरे हिंदुस्तान तक जाए। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मुहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मुहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मुहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते। बहुत शुक्रिया, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, आपने गीत भी सुना, ग़ज़लें भी सुनी। मैं एक छोटी सी नज़्म मुझे पढ़ना है, मैं अपनी जिम्मेदारियां समझता हूँ। मेरी भी उम्र है कि मैं जुल्फ और आंचल के गीत पढ़ूं, और मेरी तो पर्सनालिटी भी सूट करती है इन सारी चीजों के लिए। लेकिन कभी कभी जब देखता हूं कि पूरा एक कुनबा है, पूरी एक नस्ल है जो कटघरे में खड़ी है। मैं ट्रेनों में सफर करता हूं, मेरे मोबाइल पे फोन आता है, मैं जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहता हूं, तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के जो तनाव बढ़ते हैं वो बताते हैं कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसे में जुल्फ और आंचल की क्या शायरी की जाए। हम एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, हमारा टिकट देख करके जांच करने वाले अधिकारी की उंगलियों का दबाव बता देता है कि मुल्क के हालात बहुत बेहतर नहीं हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। आप ये जो मेरे नौजवान दोस्त हैं, पूरी रात आपने बहुत मोहब्बत से सुना है, थोड़ी सी मुझे और मेरा साथ दीजिएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक फांसी दी जाती है, पूरे देश की मीडिया हमारी तरफ इस चक्कर में देखते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया क्या है। आदरणीय रामेंद्र दादा बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, दुआ मांगता हूं, पढ़ता हूं, सुनेगा कि हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। ये जो 30 करोड़ लोग हैं, इनकी आवाज बन के बोलता हूं। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है, याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है, याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली। अब सुन के बताना, संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। आप बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। आखिर में एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूं। क्यों मर जाता है कोई खालिद, क्यों सदियों इंतजार में रह जाते हैं कुछ बच्चे, खासतौर से आजमगढ़ के तमाम मासूम बच्चे। मैं कभी कभी उन बच्चों की जगह खुद को रखता हूं तो महसूस करता हूं कि मुझे ये नज्म कहनी चाहिए। मैं शुरू करता हूं हुकूमत का शुक्रिया कि उसने एक मुहिम शुरू करी, लेकिन उस सिस्टम के ऊपर मेरा गुस्सा है जिसकी मकड़जाल में पिस करके एक खालिद मर गया। मैं पढ़ता हूं, नज्म शुरू करता हूं, सुनेगा।
भारत के भाग्य विधाता से या संविधान निर्माता से, कानून की अंधी देवी से या पूछूं भारत माता से। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। मैं जान रहा हूं मैं बगावत कर रहा हूं, मैं बगावत का ऐलान कर रहा हूं, लेकिन मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत कर रहा हूं, मेरा साथ दीजिएगा। भारत के भाग्य विधाता से या संविधान निर्माता से, कानून की अंधी देवी से या पूछूं भारत माता से, ना बचे खून का एक कतरा, क्या इतना निचोड़ा जाएगा? ना बचे खून का एक कतरा, क्या इतना निचोड़ा जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ सिस्टम से, उनको कब छोड़ा जाएगा? उनको कब छोड़ा जाएगा? उनको कब छोड़ा जाएगा? कि गैरों का जुर्म सर पर ओढ़े जेलों में बंद हैं सालों से, गैरों का जुर्म सर पर ओढ़े जेलों में बंद हैं सालों से। नेताजी कभी कभी जाकर मिलिए उनके घर वालों से, नेताजी कभी कभी जाकर मिलिए उनके घर वालों से। उन मासूमों से मिलते ही सर पर जुनून आ जाएगा, मानवता कांप उठेगी और आंखों में खून आ जाएगा। कानून कहाँ कानून रहा, उसको नौटंकी बना दिया। अगले मिसरे पे मुहर लगाइएगा। कानून कहाँ कानून रहा, उसको नौटंकी बना दिया। वर्दी ने जब जिसको चाहा, उसको आतंकी बना दिया। कि गैरों का जुर्म कब तक मौलाना के सर फोड़ा जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ सिस्टम से, उनको कब छोड़ा जाएगा? उनको कब छोड़ा जाएगा? उनको कब छोड़ा जाएगा? आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ और एक बात कहता हूँ कि सब दहशत गर्द नहीं, उनमें बेबस भी हैं, मजलूम भी हैं। सब दहशत गर्द नहीं, उनमें बेबस भी हैं, मजलूम भी हैं। ये ऐसी सच्ची बातें हैं जो सिस्टम को मालूम भी हैं। ये ऐसी सच्ची बातें हैं जो सिस्टम को मालूम भी हैं। गर सजदों वाली पेशानी जब रंदागी हो जाएंगी, गर सजदों वाली पेशानी जब रंदागी हो जाएंगी, तो तय है ये आने वाली नस्लें बागी हो जाएंगी। तो तय है ये आने वाली नस्लें बागी हो जाएंगी। जो पढ़े लिखे हैं अब उनको